Where do you see yourself in 5 years? Sir, in 5 years, my hometown, sir, Kanpur, sir. Hello everyone, welcome to Anglify Learn Fast Speak Smart. So आज है हमारा डे 13। देखो 13 दिन बीत गया कैसे कैसे पता ही नहीं चल रहा, राइट? तो आज हम सीखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस। ओके, तो आज है हमारा सबका फेवरेट, जिसके लिए आई थिंक यहाँ पे लोग पढ़ने आए हैं, विच इज मॉक इंटरव्यू राउंड। ओके, सो पर्सनल क्वेश्चंस राउंड बेसिकली। एक सेकंड। हाँ, all right, so hello ambitious simplifiers and welcome to day 13. Today is a pivotal session as we enter the high stakes world of job interviews, specifically the personal questions round. So this is where interviewers go beyond your resume to understand who you are. With the right strategy, you can turn these questions into powerful opportunities to showcase your best self, right? I will act as the interviewer and we will analyze advanced answers. So, understanding the intent behind personal questions. When an interviewer asks a personal question, they are assessing motivation. Why this job? This company? Self awareness. Do you understand your strength or weakness? Cultural fit. Will your personality align with the team? मतलब कल्चरल फिट का वही मतलब है कि जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो कल्चरली आप फिट हो कि नहीं, मतलब उसकी कंपनी के अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनैलिटी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, कैन यू ग्रो विद द कंपनी? कम्युनिकेशन स्किल्स, कैन यू आर्टिकुलेट क्लियरली अंडर प्रेशर? प्रेशर देते हैं बेसिकली, हमेशा ये याद रखना कि बिना प्रेशर तो कोई इंटरव्यू या कुछ भी नहीं निकलने वाला है ना। हमेशा प्रेशर में ही काम करना पड़ता है, इवन कंपनी में काम कर रहे हो तो भी करना पड़ेगा, कुछ भी काम कर रहे हो तो अंडर प्रेशर यू हैव टू डू थिंग्स ना। क्योंकि अब एग्जाम्स की बात करो, जैसे अब जैसे कोई एक एग्जाम होता है, ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम है, तो मतलब जो भी एग्जाम आप देते आए हो स्कूल कॉलेज हर जगह, है ना। अब 3 घंटे में पेपर लेते हैं ना, ये तो नहीं बोलते कि भाई 2 दिन में करके ले आओ, कोई भी कर लेगा ना 3 घंटे में, है ना। वो अंडर प्रेशर में आप कितना परफॉर्म करते हो ना। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ईच क्वेश्चन इज अ विंडो into a different aspect of your professional persona. ओके, सो मॉक इंटरव्यू एंड एडवांस आंसर एनालिसिस, चलो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू आवर मॉक इंटरव्यू। आई विल आस्क द क्वेश्चन, गिव यू अ मोमेंट एंड देन प्रोवाइड एन एडवांस स्ट्रेटेजिक आंसर एंड एक्सप्लेन द रैशनल। ओके, तो पहला क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी? तो टीचर्स एनालिसिस एंड एडवांस आंसर, शो डीप रिसर्च and alignment. Okay, mention specifics, their mission, projects, culture, and connect it to your aspirations. Okay, रिसर्च करो, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चैप्टर में आपको समझाया था ना कि जब भी इंटरव्यू दे रहे हो किसी कंपनी के बारे में तो आपको हमेशा अच्छी रिसर्च करनी पड़ती है कंपनी की, सो दैट आपका जो आप काम करते आए हो पहले से तो वो उसको अलाइन करके दिखा पाओ ना कि आपने जो काम कर रखा है वो आपकी कंपनी से कैसे अलाइन हो रहा है। ठीक है, आंसर सुनो। Having followed XYZ's, मतलब company's name, having followed XYZ's innovative work in pharma industry for some time, I am drawn to your commitment to XYZ's company value. Okay, example, whatever, collaborative innovation. Your recent project particularly impressed me. My professional philosophy aligns with your vision as I seek opportunities to your goal. Example, drive impactful change, and my background in digital marketing would contribute directly to your success. Okay. Why it impresses? Shows genuine interest and a clear fit. What are your greatest strengths? So, teachers analysis and advanced answer. Basically, choose 1 to 2 strengths relevant to the job. Provide a brief, concrete example. Okay. Examples, like proper advanced answer. ये one key strength is my problem solving ability in complex environments. For instance, at PwC, when a technical issue threatened a project, I quickly analyzed the cause,
collaborated with the team, and implemented a workaround, ensuring on-time delivery. My adaptability and proactive learning also allow me to thrive in dynamic statics. ये सिंपल आंसर है, ठीक है। आप इस तरीके का आंसर हर जगह हर तरीके से दे सकते हो, चाहे आपको जो भी पर्टिकुलर स्किल्स हो उस पर डिपेंड करता है। बट आप ये चीज बोल सकते हो हर जगह ना कि एक टेक्निकल इशू बहुत प्रॉब्लम कर रहा था हमारे प्रोजेक्ट को, मैंने मैंने एनालाइज किया, टीम के साथ काम किया और इम्प्लीमेंट कर दिया एक अच्छी डिलीवरी या स्मूथन कर दिया प्रॉब्लम, बस। Why it impresses? Specific examples make strengths believable and like relevant. Okay, कोई एक एग्जांपल दोगे ना तो वो थोड़ा सा बिलीवेबल लगता है। What do you consider your greatest weakness? Uh, so choose a real weakness, not critical to the job. Okay, like show what you are doing to overcome it. हमेशा कोई भी वीकनेस अपनी बताते हो ना, हर बार ये इस तरीके से बताया करो कि आप उस पर काम कर रहे हो। हर बार मैंने ये चीज बताई है, फिर से बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। One area I'm actively improving is my tendency towards over preparation. While thorough, it sometimes leads to excessive time on minor details. To address this, I have set strict time limits and prioritized ruthlessly, which has significantly boosted my efficiency without compromising quality. Why it impresses? Genuine frame with a solution and self awareness. Simple. Where do you see yourself in 5 years? सबसे फेवरेट क्वेश्चन, वेयर डू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, किसी के पास आंसर नहीं है इसका। यू डोंट इवन नो कि 5 साल बाद जिंदा भी हो कि नहीं आप, है ना। बट पूछा जाता है भाई, पता नहीं क्यों पूछा जाता है। मुझे क्वेश्चन बहुत ही वाहियात लगता है, सर बहुत ही घटिया क्वेश्चन है भाई, इसका कोई सेंस नहीं है भाई। तुम 1 साल के बाद भी नहीं बता सकते तुम क्या कर रहे हो लाइफ में भाई। यही है जिंदगी यार। आज के टाइम जो लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या कहीं भी क्रिकेटर कुछ भी हो, 5 साल में कोई बता नहीं पाता है भाई कि मैं अंडर 11 लाइक 11 टॉप 11 में खेल रहा हूँ कि नहीं। मुझे 10 मूवी मिल रही है आज, क्या पता 5 साल बाद एक को ना मिले, क्या पता कुछ और ही करने लग जाऊँ मैं स्टार्ट, है ना। इससे कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, बट पता नहीं कंपनी जब पूछती है तो उसके हिसाब से हमने भी एक ट्रैक बनाई है। शो एम्बिशन दैट अलाइंस विद द कंपनीज ग्रोथ एंड द रूल। मतलब बेसिकली कंपनी को चाहिए होता है कि भाई तुम जो भी अपने चीजें बताने वाले हो 5 साल बाद, तुम ऐसा कुछ बताओ कि मेरी कंपनी जो है मेरी कंपनी से अलाइन करे। जो एचआर है तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, उसको भी इतना ही सुनना है कि मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग तुम्हारा 5 साल बाद सिस्टम होना चाहिए भाई। अब भैया इसका आंसर सुनो। In 5 years, I envision myself in a role where I can continue developing my expertise in sales executive profile while taking on great responsibilities. I'm drawn to XYZ company's growth in sales and marketing and aspire to be a key contributor, perhaps leading initiatives or mentoring junior team members. My goal is to be indispensable asset to your organization. Wide presence shows thoughtful planning and alignment with company's trajectory। मतलब आपको बेसिकली सामने वाले एचआर को ये भी बता देना है कि मैं 5 साल बाद, मतलब जैसे यहाँ पे था ना, आई इन्विजन माई सेल्फ इन अ रोल वेयर आई कैन कंटिन्यू डेवलपिंग माई एक्सपर्टीज इन वट एवर एरिया यू आर, है। वाइल टेकिंग ऑन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई एम ड्रॉन टू, जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उसकी बात, आई एम ड्रॉन टू PwC फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रॉन टू PwC's growth इन मार्केटिंग एंड एस्पायर टू बी अ की कंट्रीब्यूटर। मैं उसमें चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूट भी करूँ उसमें। मुझे अच्छा लगता है ग्रोथ देखना, आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आई आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस और आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस एरिया। तो आप टेक्निकली ये बता रहे हो कि आप सेलेक्ट भी हो जाओगे यहाँ पे, और आपकी कंपनी में एक अच्छा सा मैं कंट्रीब्यूशन भी दे दूंगा। 5 साल तक आपकी कंपनी के साथ ही रहूंगा, ठीक है। इतना बताना होता है कि हाँ टिकने वाले हो आप आगे। वाई आर यू लिविंग योर करेंट जॉब? सॉरी, Why are you leaving your current job looking for? I think ये आपको समझ में आ गया होगा। Where do you see yourself in 5 years? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आई सपोज। आप बस इतना याद रखो, शो एम्बिशन दैट अलाइंस विद द कंपनीज ग्रोथ एंड द रोल। ये चीज जो ये आंसर है ना, तो आप इसको अपने हिसाब से चीजें लिख लो। ये बहुत हद तक सिमिलर है। इन 5 years आई इन्विजन माई सेल्फ इन अ रोल वेयर आई कैन कंटिन्यू डेवलपिंग माई एक्सपर्टीज इन। सिर्फ ये जो ब्रैकेट वाले जो टर्म है ना, इसको चेंज करना है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है ना, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट छाप दो। मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको डेली प्रैक्टिस करते रहना या रट्टा मार लो, सेम चीज, ठीक है। बस यहाँ पे स्किल एरिया जो है रेलेवेंट टू द जॉब और कंपनीज नेम, ठीक है, कंपनी एरिया, बस ये 3 चीजें ब्रैकेट में है। इसको हटा के सारा कुछ सेम कर सकते हो, सेम का सेम छाप दो।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना रट लो, क्योंकि इसके रटने से क्या होगा, बोलते बोलते रटोगे तो वोकैबलरी अच्छी होती जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे ये भी नहीं बोलूंगा मैं कि अपने हिसाब से लिखो, यहाँ पे ये एग्जैक्ट यही चीज बता देना, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना होता 5 मिनट बाद भाई। उसके अलावा अब जो फॉलो अप क्वेश्चन अगर उसके मूड में होगा वो बोल पूछेगा, इस पूरे 5 लाइन में अगर आप कहीं अटक जाते हो तो पक्का पूछ रहे हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि आप रट्टा मार के आए हो, ठीक है। हमेशा आंसर इस तरीके से दिया करो कि मतलब आप बना रहे हो, वहीं पे बोल रहे हो जो, ठीक है। इस तरीके से इसको याद करो कि एकदम छपा हुआ दिमाग में, कि आप इसके साथ खेल पाओ। जैसे ऐसे इन 5 years I envision myself in a role where I can continue developing my expertise in sales marketing. Well, while taking on greater responsibilities, I am drawn to this company growth and this, ठीक है। तो इस तरीके से बोलना कि मुझे याद नहीं है, मैं वहीं पे बैठे बैठे सोच रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करना है। Why are you leaving your current job looking for a new opportunity? बहुत बेसिक। नेवर बैड माउथ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आज तुम लोग को बता दूं, मैंने भी ये गलतियां कर रखी हैं। अपनी जो पुरानी कंपनी होती है उसके बारे में बिचिंग नहीं करनी वहां जाके ठीक है। वहां पे बुराइयां नहीं करनी अपनी कंपनी की, ये ऐसी कंपनी वैसी है, कम पैसे देती है, बहुत काम करवाती है, मार देती है, टॉक्सिक है, ये सब नहीं भूलना होता वहां पे, क्योंकि भाई नेगेटिव है, नहीं लेंगे आपको। ये आपने बोल दिया अगर। नेवर बैड माउथ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, फोकस ऑन पॉजिटिव रीजंस फॉर मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा कभी भी पुरानी कंपनी का बिचिंग करना ही नहीं है भाई। आंसर एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। वाइल आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एक्सपीरियंस इन XYZ, आई एम सीकिंग अ रोल ऑफरिंग, देखो स्पेसिफिक पोजीशन, पॉजिटिव ग्रोथ एस्पेक्ट, या है ना, ग्रेटर स्ट्रैटेजिक चैलेंज, मोर लीडरशिप स्कोप, कुछ भी इसमें से डाल सकते हो। जैसे आई एम सीकिंग अ रोल ऑफरिंग ग्रेटर स्ट्रैटेजिक चैलेंज, दिस रोल एट ABC, जहाँ जा रहे हो, दिस रोल एट ABC perfectly aligns with my career aspirations and chance to contribute to your innovative projects। सेम ये चीज भी छाप सकते हो आगे, सिर्फ ब्रैकेट वाले चेंज करना। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया आंसर। वाई आर रिलीविंग करंट जॉब, कभी ये अपनी बकवास नहीं करना पुरानी कंपनी के बारे में, सिर्फ बता दो कि हाँ मेरा मेरा कुछ कुछ मैं रोल सीख कर रहा हूँ, और जो कि मुझे आपकी कंपनी में मिल जाएगा, मेरी कंपनी में मैं अच्छा काम किया हूँ, बहुत सीखा वहां से, बट मुझे फिर वो ग्रोथ नहीं दिख रही है, बस इतना बताना। Why it impresses? Positive framing, looking forward, and focuses on future growth. Common pitfalls and how to avoid them. Common pitfalls are the common problems, potential problems. Beyond preparing good answers, it's equally important to know what not to do. Avoiding these common mistakes can significantly boost your interview performance. Okay. So vagueness and lack of specifics. Pitfall में तो problem. Giving generic answers without examples. ठीक है, I am a hard worker. ये है, बहुत लोग बोलते हैं भाई, जिसकी इंग्लिश, मतलब सॉरी टू से, जिसकी इंग्लिश या तो बिगनर लेवल पे है या तो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आई एम हार्ड वर्कर ये सब जो होते हैं, क्योंकि वो लोग सुन लेते हैं और वो फ्रेम नहीं कर पाते सेंटेंस, दिमाग में वो क्या होता है, हिंदी में 1000 चीज बोल लोगे, अब इंग्लिश में घूम फिर के यही निकलता है, आई एम हार्ड वर्कर। बहुत जेनरिक है यार, कैसे हवा में कोई भी बोल सकते हो, हर बंदा हार्ड वर्किंग आज के टाइम पे भाई। तो तुम क्या, तुम्हारे अंदर स्पेशल है, ठीक है। हाउ टू अवॉइड दिस, ऑलवेज फॉलो अप स्ट्रेंथ और क्लेम विद अ ब्रीफ, ओके, स्पेसिफिक एग्जांपल यूजिंग द स्टार मेथड, बताया था ना मैंने, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, दिस ट्रांसफॉर्म द क्लेम इनटू अ कंपेलिंग स्टोरी। स्टार मेथड नहीं पता है तो मेरा सेकंड, आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर है, वहां पे जाके देख लो। ओवर शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाँ, पिटफॉल, डिस्क्लोजिंग टू मच अबाउट पर्सनल लाइफ, फैमिली इश्यूज और हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसको अवॉइड करने के लिए कीप आंसर्स फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड स्किल्स, व्हाइल एम्पैथी इज गुड, बाउंड्रीज आर क्रूशियल इन इंटरव्यू। जैसे सिंपैथी बहुत पाने के लिए कोशिश करते हैं ना वो, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, ऐसे में रोते रहेंगे, ये करते रहेंगे, ये सब नहीं करना होता है भाई, हमेशा नेगेटिव होता है। पीपल, ऑडियंस जानते हैं, कंपनी जानती है, आप हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा प्रोफेशनल लाइफ की ही बारे में बात करो। साउंडिंग रिहर्स इनऑथेंटिक, ये वही चीज है जो अभी मैंने बोला था ना, कि रट्टा मारो बट ऐसा लगे ना कि आपने मारा हुआ है, और वो भी सारे रट्टे नहीं मारने। रट्टा मारने का मेरा मतलब कहने से ये है कि आप सब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना उसको आप रट लो, और वो रट्टे को भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डेली डेली अगर बोल बोल के पढ़ोगे ना तो आपको चीजें याद रहेंगी। मतलब सॉरी, याद रहेंगी नहीं, आपका जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज होगी, डेली डेली वो सेम चीज अगर आप कर रहे हो ना, 3 से 4 पैराग्राफ भी अगर डेली कर रहे हो तो मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी ना।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि रट्टा मारो बोल बोल के, ताकि वो चीज़ याद हो जाए, प्लस आपको उस चीज़ में कमांड भी अच्छी हो जाएगी ना, आप उसको फिर हिला पाओगे, घुमा पाओगे, खेल पाओगे वर्ड्स के साथ। पिटफॉल: मेमोराइजिंग आंसर्स वर्ड फॉर वर्ड एंड साउंडिंग रोबोटिक। रोबोटिक साउंड नहीं करना, वही मैं कह रहा था इसके जस्ट एक पेज पहले। हाउ टू अवॉइड दिस: प्रैक्टिस योर पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स, not exact scripts. Allow your personality to come through. Be natural, even if you stumble slightly. Authenticity builds connection. यही चीज है, ठीक है, कि प्रैक्टिस के पॉइंट्स एग्जांपल, ओके, नॉट एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये तो मैंने 5 बता दिए हैं, और क्योंकि बहुत सिमिलर ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो एक फ्रेम कर सकते हो आप इस तरीके का, ठीक है। बस अपने ब्रैकेट्स वाले जो है ना उसको चेंज कर दो, और एकदम रोबोटिक साउंड नहीं करना, थोड़ा सोच के, मतलब ऐसे, क्योंकि इतनी बार अगर आप एक आंसर याद कर लोगे बार बार ना, तो आप उसको अपने तरीके से घुमा के बोल पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे रुक गए, मान लो दूसरी लाइन पर रुक गए, थोड़ी देर के लिए सोच रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो तब घुमा पाओगे ना जब आपको ये आंसर पहले से पता है, ठीक है। तो अलाउ योर पर्सनैलिटी टू कम थ्रू, बी नेचुरल इवन इफ यू स्टम्बल स्लाइटली। देखो अब ये क्या है कि यहाँ पे जब बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी ना, तो ही ये चीज कर पाओगे, क्योंकि इसके पहले जब भी आप क्रैक करने जा रहे हो, तो प्रैक्टिस तो डेली करोगे, तो वो तो आनी ही आनी है, आराम से आ जाएगी, बट टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप कोई इंसान अभी इंटरव्यू दे रहा है, बहुत हाल ही में दे रहा है, तो जो मैंने आंसर्स दिखाए थे उसका फॉर्मेट या फ्रेम आप याद कर सकते हो, जस्ट टू स्पीक प्रॉपरली। वोकैबुलरी डेली डेली इंक्रीज अच्छी हो जाएगी, है ना। और उनको इस तरीके से साउंड मत करना कि रोबोटिक हो, हाँ, थोड़ा सा नेचुरल साउंड करना है, हाँ। और ऑथेंटिसिटी अगर थोड़ा सा उसमें फंबल करोगे, कुछ करोगे, तो वो इस फाइन चलता है। ब्लेमिंग पास्ट एम्प्लॉयज और कलीग्स, pitfall: speaking negatively about previous jobs, bosses, or teammates. Okay, how to avoid: always frame past experiences positively or neutrally. Okay, focus on what you learned and or what you're seeking next, rather than what you're running from. Bus not asking clarifying questions. Pitfall: answering a question you don't fully understand, leading to irrelevant responses. How to avoid: if a question is unclear, politely ask for clarification, ठीक है। कोई अगर कुछ चीज सामने से इंटरव्यू पूछता है, आपको नहीं समझ में आया, पोलाइटली पूछो जरूर। कुड यू प्लीज elaborate on what do you mean by whatever जो पूछा उसने, और just to confirm, are you asking about this shows thoughtfulness, okay, not a lack of understanding, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पूछ सकते हो, इस तरीके से ही पूछ सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में खुद कर लो चेंज अपने आप। लैक ऑफ एंथुजियाज्म और एनर्जी, pitfall: sounding monotone, bored, or unengaged, ठीक है। तो हाउ टू अवॉइड: यूज एप्रोप्रिएट वोकल टोन, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, हाँ, इवन ऑन वीडियो कॉल्स, एंड यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ओके। तो शो दैट यू आर genuinely interested, alright, and excited about the opportunity properly. Final tips for person question now. Remember these for any person question. Be authentic. Your answers should reflect who you are. Practice, don't memorize. Okay. Know your points, deliver naturally. Be confident. Eye contact, clear voice, positive body language. Okay. Listen carefully. Answer the actual question. Prepare your own questions. Always have 2, 3 thoughtful questions for them. Okay. Or interview as a question and final thoughts. Remember, as an interview is not just an interrogation, it's a two-way conversation. Okay, you are also assessing if the company is the right fit for you. आप हमेशा भीख मांगने नहीं जा रहे किसी इंटरव्यू में, हमेशा ये याद रखना कि आपको पैसे के लिए भाई हर कोई भागता है, मुझे समझ में आता है वो चीज़, ठीक है। बट तब भी आपको अपनी जिंदगी खुद समझनी है। तो अगर वो कंपनी आपके लिए अच्छी है, आपको रिव्यूज पता है, सब कुछ पता है, अगर वो आपके लिए अच्छी है तो ही आप जाओगे, ठीक है। So your confidence, authenticity, and clear communication are your best assets. Beyond the answers, your overall presence matters. Okay, your ability to listen, adapt, and engage in genuine dialogue is often more important than a perfectly memorized response. Okay, so show your personality, your passion, your professionalism. Follow up etiquette. Follow up etiquette में always send a personalized thank you email within 24 hours, कर सकते हो ना, जब email आता है एचआर का, उस पर reply. Briefly reiterate your interest and perhaps mention something specific you discussed. This reinforces your professionalism and interest. And embrace feedback, okay, even if you don't get the job. If you don't get the role, politely ask for feedback, okay. Not all companies provide, मतलब अगर मान लो इंटरव्यू ने सामने से आपको बोल दिया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, तो उनसे फीडबैक पूछो। If they do, it's invaluable for your, next interview. Persistence is the key. The job search can be challenging, okay.
So don't get discouraged by rejections. See each interview, okay, as a learning experience that brings you closer to the right opportunity. Okay, so I think we should wrap up now. Fantastic work today. You have learned to ace the personal question round, turning pitfalls into opportunities. Mastering these will significantly boost your interview confidence. So tomorrow is our day 14th, our final session for this week. Public speaking, 1 minute topics. Okay. So we will refine your ability to present concisely and powerfully. So don't miss it. Keep practicing, keep learning, and keep amplifying your professional future. Thank you so much, guys. Thank you for joining. And those who want to join my personal batch, please fill the form. Link is in the description. And also follow करो, share करो, subscribe करो यार, ये सब कर दिया करो यार. मेहनत कर रहे हैं डेली हम. ओके. ऑलराइट. तो ठीक है गाइस. आई होप मेरे सेशन पसंद आया हो आप लोगों को. बाय बाय.